So welcome to the students for the new chapter of the strength of material, that is the bending stresses in the beam. This is a very important topic, and we will study it in detail. तो इसमें जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, स्टार्टिंग में जो मेरा लेक्चर होगा ये आपका इंट्रोडक्शंस, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, उसका इंट्रोडक्शंस, in order to drive the equation of the bending stresses in beams, what are the assumptions we are taking here, and what are the other concept which will, you can say that is which will very important for that. तो इसको हम शुरू से, ये हमारा पहला लेक्चर है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम. लेट अस स्टार्ट इट, and I will say that all the students that they are watching my lectures here, they first concentrate their self, and from the beginning right to the end of that you will get a very beautiful concept in that bending stresses in beam. और अभी let us start, right? तो हमारा है bending stresses in beam. What is, ये हमारा टॉपिक का नाम है bending stresses in beams. This is the new topic I am starting here. This is your lecture number 1 of this topic. You understand? So let us start it. Suppose I am having a beam like this. जहाँ पे ड्रा कर लेते हैं. This is your beam. Right? And the transverse load is acting on the beam. ये आपका बीम है, तो इसके ऊपर फिक्स आप ये कर लीजिए. दिस इज कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं, राइट? इट इज ए कैंटिलीवर बीम and the transverse load is acting on the beam. सीधा ले लीजिए. So this is your beam. The load is acting on the beam. Suppose this load is here. There is one load, and then this is another load. So इसमें क्या है, ट्रांसवर्स लोड बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम just like this, right? So this is the reactions. Transverse load is acting on the beam. Suppose there is a plane here. This is, I will say, there is a section, and from this section I cut the beam. तो मैं बीम को यहां से क्या करता हूं, उसको काटता हूं यहां से, just like this. Understand? So what happens there? You understand? और इसको आप इस तरीके से कर लीजिए. एक शेयर स्ट्रेस ये प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, और दूसरा ये बीम है आपका. सपोज दिस इज योर बीम, and the shear stress like this. This is S, this is S. You understand this? तो मैंने क्या किया, I have taken a beam, suppose any beam I have taken, and the transverse load is acting on the beam. So when the transverse loads are acting on the beam, what you will get? You will get the two forces, that is
जहां पे आपको एक तो क्या मिलेगा, आपको इंटरनल फोर्सेस मिलेंगी, इंटरनल फोर्सेस, and the second one is called the internal movement. You understand? ये आपकी इंटरनल, ये आपका इस तरीके से ये आपका मूवमेंट होगा, ये एम जहां पे, और ये मूवमेंट आपका यहाँ पे ऐसे होगा. You will get the internal force and the internal movement like this, and the second one you will get the internal movement. This is clear? So what is there? When the transverse load is acting on the beam, you will get the internal force as well as the internal movement, and that internal movement is called the bending moment. So you can say that due to this transverse load, you will get the two loads. You will get the two types of load. That is, one is the internal forces. इसमें कौन सी होंगी? You will get the two types of load. One is you will get the shear force, and the second one you will get the bending moment. You understand? तो इंटरनल फोर्स हमारी क्या होगी? You will get two. That is the shear force. अब shear force कैसे मिलेगी? Why you will get the shear force here? Reason is that this transverse load is acting parallel to the section. You understand that? And the internal force which we will get here, that is the shear force. And the second one, you will get the bending moment. So two loads you will get, you can say shear force and, bending moment. You understand that? So shear force से, with the help of the shear force, or you can say by the shear force, हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट shear stress. याद रखना है, shear force से you will get the, क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट shear stress. You understand? And from the bending moment, you will get the bending stress. You understand that how we will get the bending stress in the beam? Because in the beam, क्या होगा? You will get the two internal forces. One is internal force is shear force, and the second one is the bending moment. You understand? And by the bending moment, you will get the bending stress, and by this shear force, you will get the direct shear force. You understand this? Now, direct shear force and direct bending stress you will get. So, you will get the two, you can say, stresses here. That is direct shear stress and direct bending stress. So, you will calculate this separately and this separately. You understand? हम डायरेक्ट shear stress को separately कैलकुलेट करेंगे and bending stress को हम separately कैलकुलेट करेंगे. You understand? We will not add together. We will not calculate together. You understand? Because we are not studying here the complex stresses. That chapter is different. We are studying here the bending stresses in the beam. You understand this? तो जब कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रेसेस होंगी वहां पे जब उसमें डिस्कस करेंगे, then I will come to know that how we will take this together. But here we will calculate this separately and this separately. But my topic is bending stresses in beam. So I will concentrate myself on the bending stresses only. You understand? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है. यू नो हाउ वी विल गेट द बेंडिंग स्ट्रेस. फर्स्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैसे मिलता है. व्हेन ए बीम इज अंडर सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोड. You understand that when the beam is subjected to the transverse load, then
there are two internal forces developed in the beam. One internal force is called the shear force, and the second internal force, that is called the bending moment. By the shear force, we will get the direct shear stress, and by the bending moment, we will get the bending stress. Right? You understand this? तो ये हमारा bending stress. अब हमारा जो टॉपिक है, that is bending stresses in beam, and this now we have to find out the bending stresses in beam. So in order to find out the bending stresses in beam, or you can say that in order to find the equation of the bending stresses in the beam, first we will try to understand some very important concepts which are related there. You understand? Very important concept जो इसके होंगे, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो आपके important concept होंगे, when we will write the equation of bending stress, that concepts actually play the major role in the derivation of the bending stress. So first जो हमारा concept होगा, what is our first concept? Our first concept is pure bending. Our first concept क्या है? Pure bending. तो हमारा जो first concept है, that is pure bending. So what is pure bending? Pure bending क्या है? जैसे इसका नाम है, as from the name suggests, pure bending means when the bending moment is constant. You understand? When the bending moment in entire beam that is constant, that is called the pure bending. Means in that case, we will assume that shear force doesn't exist. Shear force is zero. So pure bending This is a very important term or concept, you can say. This concept we will use for the derivation purposes. You understand? जब आप derivation करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये pure bending जो है, ये purpose क्यों it is so much important, जिसको कि अभी हम discuss करेंगे. तो pure bending means pure bending in a beam means when the bending moment is constant. जब हम ये कहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द, और यू कैन से दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग ऑफ द बीम. जब बीम का बेंडिंग मोमेंट वी अज्यूम दैट इट इज कांस्टेंट, तो ये आपका क्या है? प्योर बेंडिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर बेंडिंग में मैंने कहता हूं बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो हियर आई एम सेइंग दैट द shear force जो है इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट इज जीरो. shear force क्या है? जीरो. मींस इसमें shear force मैं अज्यूम कर रहा हूं कि देयर इज नो shear force. तभी तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. If there is a shear force, if actually practically there is a shear force that we will discuss later on, but here I am assuming that shear force is zero. So my bending moment is constant. So you can say that in case of the pure bending, means when the bending moment is constant and shear force is zero. You understand? तो जो आपका, अगर आप जैसे आप जानते हैं बेंडिंग मोमेंट का जो आपका इक्वेशन है, जो आपका स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट है, ये आपने रिफ्लेक्ट पीछे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पढ़ाया था, उसमें पढ़ा होगा अपना. स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट क्या है? dm upon dx. This is equal to shear force, right? Slope of the bending moment, this is equal to shear force. And as I am taking as
shear force is 0, right? I am assuming that shear force is 0 in this beam. So therefore you can say that dm upon dx is equal to 0. ये तो मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर दिया, मैथमेटिकली आपने प्रूव कर दिया कि अगर मैं shear force को 0 रखता हूं, if I assume that the shear force in this beam is 0, then the beam is under pure bending. You understand? Dm upon dx, this is the equation, this is a slope of the bending moment, this is 0. So you can say that therefore bending moment is constant. You understand? But the question is, क्या बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट होता है? क्या आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा? द क्वेश्चन इज, क्या आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या कांस्टेंट है? नहीं होगा. जैसे ये है, सपोज इसको मिटा देते हैं. सपोज ये आपकी बीम है, ये आपकी बीम है, मैंने लिया था, ये बीम है, राइट? तो इसमें जे ट्रांसवर्स लोड है, इसमें जे ट्रांसवर्स लोड है, ये ट्रांसवर्स लोड, एंड दिस इज योर रिएक्शन हेयर. तो इफ आई विल टेक द सेक्शन, सपोज जे आपकी सेक्शन है 1-1, ये सेक्शन है आपकी 2-2. So will you tell me the bending moment at 1-1, bending moment at 1-1, this is different. Bending moment at 2-2, that is different. Because the bending moment here, you are seeing that the bending moment is not constant. Bending moment is different here. Bending moment is different here because practically bending moment is different. Reason is shear force is acting on the beam. रीजन क्या है कि shear force भी तो, या shear force या shear stress भी तो बीम में डेवलप हो रही है, because two internal forces are developing in the beam. So here I am, जो प्रैक्टिकली है वो I am taking the shear force into the consideration. जहां पे जो प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट है वो क्या है कि I am taking the shear force into the consideration. So here you will say that the bending moment at the section 1-1, bending moment at the section 2-2, bending moment at the section 3-3 are, you can say, at any plane of the beam, bending moment is not constant. Bending moment is changing. Then why I have taken this assumption of this pure bending? Why I have taken? Only simply I have taken this assumption for the simplification of the derivation of the bending stresses in beam. जो bending stresses की हम derivation करेंगे उसकी simplification के लिए मैंने ये assumption को क्या किया है? I have taken it. You understand? But practically it is not possible. Pure bending of beam is not practically possible. Always there is a shear force, there is a shear stress. So bending moment is different. At every section of the beam, bending moment is different. But for the sake of the derivation purposes, for the simplification, I am assuming here that the beam is under pure bending. You understand? You understand this point? Beam is under pure bending. So in order to, जहां तक क्लियर है, दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन. जहां तक क्लियर है कि हमने एक मेन कंसेप्ट जो जहां पे लिया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहां पे लिया, वो क्या था? प्योर बेंडिंग का कंसेप्ट मैंने लिया यहां पे, इन ऑर्डर टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस. यू अंडरस्टैंड? तो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, दैट इज वेरी नीडफुल फॉर मी दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई विल ड्राइव द इक्वेशन. So, in order to drive the equation of the bending stress, there are the two theories, you can say. There are the two types of theories. That is the first, Ehlers-Bernoulli's
beam theory and Timotian co-beam theory. So you can say there are in order to in order to drive the equation there are two types of the theories. First theory है आपकी Ehlers beam theory, and the second is Timotian. Second is Timotian co-beam theory. Second is Timotian co-beam theory. Right? So there are the two theories, but here only I am taking or driving the equation by using the Edwards-Bernoulli's beam theory. You understand? So now let us understand. In order to drive this equation by the Edwards-Bernoulli's beam theory, there are certain assumptions first we will take. We will consider there are very important, you can say, very important assumptions are there, which we will consider before driving the equation by using this Ehlers-Bernoulli's beam theory. तो वन बाय वन हम सारी assumptions को क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फर्स्ट वी विल लर्न दैट व्हाट आर दोज assumptions. हमारी वो assumptions क्या है उसके बारे में हम लिखते हैं. सो assumptions फर्स्ट है assumptions. पहली assumption क्या है? The material of the beam that is homogeneous and isotropic, right? तो मटेरियल जो है बीम का, मटेरियल ऑफ द बीम इज homogeneous and isotropic, right? This is the first assumption. Second assumption, Young modulus of elasticity Young modulus of elasticity E for tension and compression in the material of the beam is same. Right? तो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है, जो भी हम मटेरियल बीम में यूज करेंगे, उसका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, चाहे उसकी वैल्यू हम कंप्रेशन में लें या उसकी वैल्यू हम इसमें लें, टेंशन में लें, दैट शुड बी सेम. थर्ड, stresses are proportional to strain. You understand? So stresses are within the proportional limit. ये आपका कर लीजिए. Stresses are within
the stresses are within the proportional limit. ये थर्ड हो गया. फोर्थ वही assumption, the beam is under pure bending. You understand? Fourth assumption is same, that beam is under pure bending. Beam is under pure bending. बीम जो आपकी है वो प्योर बेंडिंग के अंडर होना चाहिए, मींस बेंडिंग मूवमेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि जो जहां पे हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशंस लेंगे कि हमारा बेंडिंग मूवमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है इन द बीम. सो दैट assumption you can say that is called the beam is under pure bending. अगला है all the transverse section, ये चार लिख लीजिए आप. all the transverse section remain plane. all the transverse section so ये assumptions था आपका, assumptions. तो फिफ्थ था आपका all the transverse section remain plane after bending. all the transverse section remain plane after. initially 6 क्या है, initially the beam is you can say horizontal, but after bending the beam will bend in the circular arc. You understand? The beam, you can say beam is initially state, beam is initially state state bends in the circular arc. Understanding? And the next one is cross section of the beam. अगला क्या है, क्रॉस सेक्शन of the beam is symmetrical about cross section of the beam is symmetrical about the plane of loading. You understand? Cross section of the beam is symmetrical about the plane of loading. So these are few assumptions which we have taken are considered during the derivation of the bending stress equation. Now you have written all these assumptions. Now one by one we will discuss each and every assumption and understand that what is the importance of these assumptions here in the
I have in the derivation of this equation. जब हम derivation equation की करेंगे, so what are the importance you can say? What are the importance? Why we have assumed these assumptions? Why we have taken these assumptions? What are, you can say, its effect? Why it is so important? That we will discuss one by one. You understand? तो पहला तो assumption जो है that is very simple, इसको मिटा देंगे, तो एक एक assumption लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका explanation करेंगे. You understand? तो पहली assumption थी that the material is homogeneous and isotropic. ये तो एक mostly what we use the material, ये तो एक हमारी एक very important assumption है ही है कि जो हम material इसका बीम का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, homogeneous होना चाहिए और isotropic होना चाहिए. This is the first assumptions जो है वो हमारी, this is there. So I don't think there is not much need of the explanation of this. This you understand that the material that should be homogeneous and isotropic. This is the first assumption. Now the second assumption हमारा था, second assumption क्या था हमारा इसमें? Young models of elasticity. Young models of elasticity remain same in tension and compression. Tension and तो ये हमारी सेकंड अजम्पशन थी. इसमें क्या है कि वट एवर द मटीरियल वी विल यूज इन द बीम, दैट मटीरियल शुड हैव द यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दैट यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, द वैल्यू ऑफ द यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, वेदर इट इज इन टेंशन, वेदर द बीम इज अंडर compression, but the value of young modulus of elasticity, that should be same. ये हमारा क्या है, second assumption है. Because the materials, there are certain materials which are having the different value of the young modulus of elasticity in tension and different value of young modulus of elasticity in compression. There are certain materials. But here we are not using those materials. We are using that material in the beam which is having the young modulus of elasticity in tension as well as in compression, that is same. You understand? So this assumption is also very easy. You can say there is not much to actually explain here. सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो हमारा यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होगा, हम वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में और कंप्रेशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दिस इज द सेकंड अजम्पशन. नाउ द थर्ड अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड. थर्ड अजम्पशन क्या है? स्ट्रेसेस आर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट. अगर मैं थर्ड अजम्पशन की बात करूं तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको आपने समझना है. स्ट्रेसेस आर विद इन द proportional stresses are within the proportional limits. So what does it means? That here we are using the Hooke's law. He says that the stresses are within the proportional limit. Means we are using the Hooke's law, or Hooke's law, but the Hooke's law states that the stress is directly proportional to strain. You understand? अब देखिए why this assumption is very important in this case. Why we have taken this assumption that the stresses are within the proportional limit when we have to drive the equation of the bending stress. Bending stress की equation को drive करने के लिए
हमें इस assumption की जरूरत क्यों पड़ी? Why we say that this assumption is important? Just understand. To drive the equation of stress, हमें अगर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस ड्राइव करना है, जहां इक्वेशन यू कैन से हमें स्ट्रेसेस को फाइंड करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस का हमें डिस्ट्रीब्यूशन, वी शुड नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। इफ वी हैव टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस, we must know the distribution of the internal forces, that how these internal forces are distributing. You understand how these internal forces are distributing in order to find the equation of stress. Now, how these internal forces are distributing, that for calculating that, for knowing that, we must know the how you can say there is a deformation in the beam, or you can say how it is deforming. So it means that first we know the equation of the strain. First we know the equation of the strain, or first we know the value of the strain, that how it is deforming. जे इसकी डिफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हो रही है। When we know how it is deformation, when we know the deformation of a particular beam, you can say where you are applying this, then only you can understand that how the internal forces are distributing, are deforming. You understand? तो पहले हमें फर्स्ट वी मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन, और यू कैन से फर्स्ट वी नो द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी डिफॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। व्हेन वी नो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन बाय यूजिंग द हुक्स लॉ, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस। अगर हमें डिफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है कि हाउ इट इज डिफॉर्मिंग, तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन के बारे में पता चलता है, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस की हमें जो डायरेक्शंस होगी, हमें जो स्ट्रेस की जो हमें डायरेक्शन होगी, जब स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है, स्ट्रेस की क्या डायरेक्शन होगी, वेदर द स्ट्रेस इज इन द लीनियर डायरेक्शन, वेदर इट इज पैराबोलिक, वेदर इट इज you can say linear or parabolic like this. This only you can find when you know that how this particular beam is deforming. When you know the equation of the strain, if you know that the equation of the strain is parabolic, so it means that the stress is also in parabolic direction. When you know the strain is, you can say, or the deformation is linear, then the stresses are linear. You understand? So this is the importance कि हमें सबसे पहले हुक्स लॉ किस लिए हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेस की हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जब बेंडिंग स्ट्रेस जो फाइंड करेंगे उसमें हमें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, वी मस्ट नो, वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, बट वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ दैट। वो डायरेक्शन हमें कैसे हमें मिलेगी, जब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन जो है मालूम होगी, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस को रिलेट करता है आपका हुक्स लॉ। यू अंडरस्टैंड दैट? तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि how there is the deformation, how there is the elongation, how the deformation, and what is the equation of the strain. जब हमें equation of the strain पता चलेगी, so by using the Hooke's law we can find the equation of the stress. Hooke's law को से हम equation of the stress find out करेंगे, और जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेस की वो हमें कैसे मिलेगी, जो डायरेक्शन हमारी स्ट्रेन की होगी, डिफॉर्मेशन की होगी। यू अंडरस्टैंड दैट?
अगर आपका सपोज इफ आई से ये आपका इक्वेशन आप स्ट्रेन है, इस तरीके से कोई चीज है, इस तरीके से आपकी डिफॉर्म कर रही है, राइट, लाइक दिस। जो पैराबोलिक, ये डिफॉर्मेशन जो है ये क्या है, पैराबोलिक है। जो इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस होगी, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से चेंज होगी, किस तरीके से वेरी करेगी, पैराबोलिक वेरी करेगी। और अगर मैं कहता हूं कि आपकी जो इक्वेशन है ये, अगर स्ट्रेन की इक्वेशन है, स्ट्रेन इज वेरिंग लीनियरली, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस होगी वो भी क्या होगी, लीनियर होगी। यू अंडरस्टैंड, जो आपकी स्ट्रेस जो वेरी करेगी वो क्या करेगी, लीनियरली वेरी करेगी। यू अंडरस्टैंड दिस। सो आई थिंक दिस assumption इज क्लियर टू यू। एक दफा और रिपीट कर देता हूं मैं। In order to find the equation of stress, we must know that how the internal forces are distributing. You understand? First, we must know that how the internal forces are distributing. Without knowing this thing, how the internal forces are distributing, you cannot find the equation of the stress. And for this purpose, you must know that how the beam is deformed. पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बीम जो आपकी है वो किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है। मीन्स फर्स्ट यू नो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन, यू अंडरस्टैंड दैट, तभी तो आप इंटरनल फोर्सेस जो है उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको डिफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी डिफॉर्मेशन क्या है। क्या इसकी डिफॉर्मेशन लीनियर है, पैराबोलिक है, यूनिफॉर्म है। तो अगर डिफॉर्मेशन आपकी जो है लीनियर है, यूनिफॉर्म है, पैराबोलिक है, तो अब यूज करेंगे इसको, हुक्स लॉ को यूज करेंगे, तो वहां से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस मिलेगी और वहां से आपको स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो मिलेगी। अगर स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन आपकी यूनिफॉर्म है तो जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, लीनियर है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस में जो आपकी डायरेक्शन होगी, स्ट्रेस में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी, पैराबोलिक होगी। तो ये अजम्पशन तभी मैंने कहा था कि स्ट्रेसेस आर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस बाय यूजिंग द हुक्स लॉ। यू अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट अजम्पशन, there are the two assumptions which are related to each other, right? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The first that the beam is under pure bending, and the second one is the beam क्या है, the beam is under pure, the beam is under pure bending, और इसका था all the transverse sections remain plane after bending. Right? So these are the two assumptions. All the transverse section remain plane after bending. These two assumptions are related to each other. How these two assumptions are related to each other, that we will understand. First, ये आपने लिया था beam is under pure bending. Pure bending means the beam is under the constant bending moment. You understand? जहां पे shear force 0 है. And the second assumption is all the transverse sections remain plane after bending. You understand? So these two assumptions are very much related to each other.
तो पहले मैं इसको करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यू अंडरस्टैंड। देखिए ये आपका बीम है, दिस इज योर बीम। So this is the beam here. Why I have taken this assumption? Reason is, in order to derive the equation of the stress, understand this, in order to derive the equation of the stress, we must know, first we know the equation of the strain, or first we know that how this beam will deform. You understand? ये बीम जो है वो किस तरीके से डिफॉर्म करेगी, और जो बीम की डिफॉर्मेशन होगी उसके ही अकॉर्डिंग जो आपकी स्ट्रेस होगी वो आपकी डायरेक्शन होगी। यू अंडरस्टैंड। तो मैंने अज्यूम किया इसकी बीम की, इसकी स्ट्रेन की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, बट आई हैव अज्यूम्ड दैट ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। व्हाई आई हैव अज्यूम्ड, ये बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ये मैंने अज्यूम किया था, वो किस लिए? बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन। पहले मुझे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो सपोज करो ये आपका प्लेन है, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। आई हैव अज्यूम्ड that transverse plane is like this when the beam is like this. You understand? अब क्या है, जब आपकी डिफॉर्मेशन होगी, ये पॉइंट है आपका ए, सपोज दिस इज योर पॉइंट ए, राइट। जब आपकी बीम की डिफॉर्मेशन होगी तब क्या होगा आपका, व्हेन देयर इज ए डिफॉर्मेशन, तो बीम आपका क्या होगा? सो बीम इज लाइक दिस, राइट। ये थोड़ी डायग्राम ठीक नहीं बनी। राइट। तो ये आपका बीम क्या हुआ, ये आपकी बीम का डिफॉर्मेशन हुआ। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये पॉइंट आपका, सपोज करो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट था जहां पे बी, और ये आपका पॉइंट था सी। और जब आपकी बीम डिफॉर्म हुई तो मैंने असम्पशन लिया ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो बेंडिंग के बाद भी जो ट्रांसवर्स सेक्शन था वो कहता है वो क्या रहा, प्लेन रहा। इसमें डिफॉर्मेशन मैंने अज्यूम नहीं किया, क्या हुआ रहा, क्या रहा, प्लेन रहा। तो उससे क्या हुआ, जब इसको बेंड किया तो ये जो पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका ए डैश जहां पे चला गया। यू अंडरस्टैंड, दिस पॉइंट इज ए डैश, जहां पे ए डैश है। ये आपका पॉइंट जहां पे तो बी रहेगा ही रहेगा, और ये आपका पॉइंट आपका चला गया सी डैश, राइट। ये आपका पॉइंट चला गया सी डैश, लाइक दिस, राइट, ए बी सी। सो जस्ट लाइक दिस। तो अब आपका ये क्या आएगा, ये जो उसने कहा था रिमेन प्लेन, ये आपका प्लेन ही रहा। ये हमने अज्यूम किया था कि ये ट्रांसफर सेक्शन दैट विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये पहली ट्रांसफर सेक्शन थी इनिशियल में, और जो ये होगी आपकी बेंडिंग। यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए जो स्ट्रेसेस हैं आपकी,
जो डिफॉर्मेशन है इसकी, तो डिफॉर्मेशन इसकी कितनी हुई, बिकॉज ए पॉइंट व्हेन इट बेंड्स लाइक दिस, जब इसकी बेंडिंग हुआ, यू अंडरस्टैंड दिस, पॉइंट ए जो है वो ए डैश को मूव कर गया, पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी के ऊपर ही रहा, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो है, जो न्यूट्रल एक्सिस का जो पॉइंट है वो डिफॉर्म नहीं होता, यू अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट से दैट इट डिफॉर्म, दैट पॉइंट बी विल रिमेन एट पॉइंट बी एंड द पॉइंट सी that will deform to C dash, but the plane, you can say the plane is remain plane after bending. तो ये जो आपकी डिफॉर्मेशन थी ये इस तरीके से हुआ, यू अंडरस्टैंड, तो ये डिफॉर्मेशन इसकी कैसे हुई, इसको बड़ा करके बना लेते हैं, जहां पे ये आपका ये बनाया हुआ है मैंने, सो डिफॉर्मेशन इज लाइक दिस, तो डिफॉर्मेशन क्या है, कि जस्ट इसको बड़ा करके कर लेते हैं, so its deformation is like this, you understand. तो ये देखा आपने, जब मैंने प्लेन को, ट्रांसवर्स सेक्शन को क्या रखा, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, पहले बिफोर बेंडिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन इज A, B and C, just like this, and when there is a bending, you have seen here, when there is a bending, the point A move to A dash and point C move to C dash and point B will remain here. तो जहां से आपको डिफॉर्मेशन की जो, ये कैसे डिफॉर्म हुई है आपकी बीम, ये डिफॉर्मेशन है, दिस इज आपकी डिफॉर्मेशन, राइट. सो फ्रॉम हियर यू कैन से डिफॉर्मेशन कैसी थी, डिफॉर्मेशन आपकी क्या है, लीनियरली, डिफॉर्मेशन क्या, लीनियर, right. So as I told you that in order to drive the equation of the stress, first we must know the how the beam will deform, or we must know the equation of the strain, how the beam will deform. First we know the deformation and then we can find the equation of the stress. तो deformation अगर ये है तो जो आपकी bending stress होगी इसमें, तो मुझे बताइए जो bending stress है, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे इसकी, या यू कैन से बेंडिंग स्ट्रेस इसकी कैसे चेंज होगी, कैसे वेरी करेगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आपकी कैसे करेगी, लीनियरली करेगी, यू अंडरस्टैंड दिस. तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कैसे वेरी करेगी, लीनियरली करेगी, जस्ट लाइक दिस, राइट. तो बेंडिंग स्ट्रेस विल वेरी लीनियरली, ये आपकी आ गई बेंडिंग स्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड. आपको ये पता चला कि बेंडिंग स्ट्रेस हमारी लीनियर क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू दिस assumption which we have taken the assumption that all the transverse section remain plane after bending. Due to this assumption our bending stress is linear, because the deformation in this case the deformation is क्या है, लीनियर है. तो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि हमने ये अजम्पशन लिया है, यू अंडरस्टैंड दिस. अब आ यही बात इसमें, अगर मैं इसमें अज्यूम करता हूं, सपोज ये तो हो गया इसमें कि हमने जो अजम्पशन लिया था
द बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अगर मैं कहता हूं कि हमारी ये अजम्पशन नहीं, मैं अज्यूम करता हूं, तो हमारी ये बीम है, हमारी सपोज द बीम इज लाइक दिस, ये पहले बीम थी, जैसे अंडरस्टैंड करें आप, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, यू अंडरस्टैंड। बट हमारी बीम जो है वो क्या है, ये मैं कंसिडर नहीं करता हूं कि ड्यू टू बेंडिंग हमारी जो सेक्शन है दैट विल रिमेन प्लेन, यू अंडरस्टैंड। तो मैं अज्यूम नहीं करता हूं कि अगर जब ये बेंडिंग होगी इसकी, तो मैं कहता हूं कि बेंडिंग जब इसकी होगी, सपोज ये बेंडिंग ऑफ द बीम है, ये बेंडिंग मैं कंसिडर करता हूं उसकी, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में अज्यूम करता हूं मैं कि आपकी जो सेक्शन है बेंडिंग के बाद वो इस तरीके से हो जाती है, प्लेन नहीं रहती, इस तरीके से आपकी बेंडिंग हो जाती है, दैट इज नॉट प्लेन। तो टेल मी, अगर ये आपकी बेंडिंग इस तरीके से आपकी हो जाती है, तो ये थी आपकी पहली बेंडिंग, राइट। ये बेंडिंग प्लेन नहीं है, तो ये जो मुझे बताइए जो डिफॉर्मेशन जो होगी इसकी, तो ये डिफॉर्मेशन जो आपकी होगी, तो ये क्या डिफॉर्मेशन इसकी लीनियर होगी? नहीं होगी, बिकॉज वी कैनॉट फाइंड द डिफॉर्मेशन हियर। हम डिफॉर्मेशन तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिफॉर्मेशन होगी, वी विल नॉट गेट द लीनियर डिफॉर्मेशन। सो इट इज, so to drive the equation it is very difficult to, तो इस केस में आपने देखा कि जो आपकी डिफॉर्मेशन है, आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है? लीनियर नहीं है। अगर मैं ये सेक्शन ये आपकी अजम्पशन को नहीं लेता हूं तो हमारी डिफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, और इन दिस केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव द इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड। तो पहला तो ये केस था, इसलिए हमने ये रखा फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशन, ये लिया था कि ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यू अंडरस्टैंड। नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस, द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। जो एक ये चीज है कि पी बीम जो आपकी है अंडर प्योर बेंडिंग है, हाउ द बीम विल रिमेन अंडर प्योर बेंडिंग। देखिए सपोज करो so this is your beam, right? So this is your beam, this is your section 1-1 and this is your section 2, you understand? This is your section 1-1 and this is your section 2-2. तो हमने assumption लिया था the beam is under pure bending। अगर मेरा assumption जो है, मैं कहता हूं, अगर मैं assumption इसको मिटा के if I will say the beam is not under pure bending, suppose if I say, if I consider, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, if I consider beam is not under pure bending, क्योंकि जो मैंने assumption लिया था इसमें that is the beam is under pure bending। अगर मैं कहता हूं कि मेरी बीम जो है वो प्योर बेंडिंग नहीं है, suppose if I say beam is not under pure bending, then what happens?
देखिए ये आपका बीम है. I have taken section 1, 1, 2, 2, 3, any plane, any section I can take. And you know that if there is, what is there? There is a bending moment and there is a shear force. So the bending moment is not constant at all. Bending moment at section 1, 1 is different. Bending moment at section 2, 2, that is different. Bending moment at section 3, 3, that is different. Or you can say that the bending moment at any plane of the beam, that is different. You understand? So bending moment is not constant, bending moment is different. You understand? तो जब bending moment आपका different होगा तो क्या होगा? Suppose I will consider a small element here. This is the small element in the beam. ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. ये small element है in the beam. I have taken small element in the beam. You understand? तो स्मॉल एलिमेंट इन द बीम है, तो आपका क्या है, इसको मैं एनलार्ज करके बड़ा कर लेता हूं. सपोज दिस इज योर स्मॉल एलिमेंट, मैं एनलार्ज कर लिया इसको. दिस इज द स्मॉल एलिमेंट इन द बीम, राइट. तो जहां पे क्या है, देयर आर द टू शियर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट. जहां पे दो शियर स्ट्रेसेस, सॉरी, सो देयर आर द टू शियर स्ट्रेसेस, वन इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस. There are the two shear stresses इस प्लेन के ऊपर. अगर ये S है, this shear stress S, this is S. Now there is a complementary shear stress also. अब क्या होगा, अगर दो shear stresses एक्ट कर रही है तो there is a complementary shear stress. तो complementary shear stress क्या होगा, this is your shear stress like this and this is your shear stress like this, right? Here I am considering the, yes, bending moment is not constant. It means that there is a shear stress. It means that there is a shear stress. So to make you understand that what is the effect of the shear stress, suppose I have taken a small element here. और इस small element में क्या है, ये मैंने एक small element बीच में से काटा, ये ले लिया. तो इसमें क्या होगा, एक shear stress जहां पे ऐसे एक्ट करती है, कैसे, तो इस दोनों shear stress का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. अब देखिए जो कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा, व्हाट हैपेंस जो कंप्लीमेंट्री आपकी शेयर स्ट्रेस है, व्हाट यू कैन से, सो व्हाट हैपेंस कंप्लीमेंट्री. देखिए ये बीम है, दिस इज योर बीम, राइट. तो इस बीम में मैं कहता हूं शेयर स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस हो रही हैं या शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस हो, डेवलप होती. तो दिस बीम इज मेड ऑफ, यू कैन से, वेरी स्मॉल लेयर. इसमें क्या होगा, मटेरियल्स में क्या होगी, ऐसे ऐसे स्मॉल लेयर्स होंगी, राइट, जस्ट लाइक दिस. Small layers in the material. You understand? This is a beam. Beam is, you know everybody that this is made of the material. I say there are very, very small layers of the material like this. You understand? When the complementary shear stress will act on this, or you can say due to the shear stress, what happens, the layers जो है they will start moving. ये इधर से ये इधर मूव करना शुरू करेगी, ये इधर से इधर मूव करेगी, ये कुछ पॉइंट्स इधर मूव करेंगे, कुछ पॉइंट इधर मूव करेंगे, कुछ इधर करेंगे, कुछ इधर करेंगे, ड्यू टू द कंप्लीट shear stress. You understand? तो कंप्लीट shear stress से क्या होगा, the points start moving, the point of the layers, they start moving in the different directions. You understand? इधर मूव करेंगे और इधर मूव करेंगे. You understand? तो आपका जो कर्व आपको जहां पे मिलेगी, मुझे बताइए, जो जहां पे जो आपको कर्व मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको इस तरीके से डिस्टॉर्टेड कर्व मिलेगी, और जो आपका जे भी होगा, जे भी आपका डिस्टॉर्टेड ही होगा, राइट, लाइक दिस. आपको डिस्टार्टेड कर्व, यू विल गेट द डिस्टार्टेड कर्व हियर. यू अंडरस्टैंड?
तो डिस्टार्टेड कर्व का तो जैसे मैं पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज द वे। हमें अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, द बीम इज नॉट अंडर प्योर बेंडिंग। इफ आई प्रैक्टिकली जो चीज है वो क्या है कि बेंडिंग मूवमेंट इज देयर। बेंडिंग मूवमेंट जो है आपका कांस्टेंट नहीं है, दैट वेरी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। And if the bending moment is there, so it means that the curve which we will get are the section that will not remain plane after bending. Transverse section of the beam that will not remain plane after bending. ये आपका प्रूव हो गया। वो बेंडिंग पहले केस में जो मैंने बताया था, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या था आपका, प्लेन। बेंडिंग के बाद भी क्या रहा, प्लेन रहा। लेकिन जहां पे आपने देखा कि अगर if I will not consider the pure bending, if I say that the bending moment is there, pure bending मैं नहीं लेता, तो so what happens, the shear force is there। क्या होगा, shear force आपका जीरो नहीं है, shear force is there। तो shear force से क्या होगा, आपका shear stress प्रोड्यूस होगा, और वहां पे due to this complementary shear stress, what happens, the layers of this particular beam, जब हम इसका बेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, जो लेयर होगी जो पर्टिकुलर बीम्स की, दे स्टार्ट डिस्टॉर्टिंग, यू कैन से डिस्टॉर्शन इसमें होगी, बिकॉज द पार्टिकल्स जो आपके लेयर्स के हैं वो आपके इस तरीके से मूव करेंगे, यू अंडरस्टैंड, व्हेन दे आर अंडर द shear force। तो आपको जो जहां पे सेक्शन जो मिलेगी, ट्रांसफर सेक्शन जो होगी, जो कि बिफोर ओरिजिनली आपकी क्या थी, बीम की ट्रांसफर सेक्शन थी, लेकिन आफ्टर बेंडिंग यू विल नॉट गेट द ट्रांसफर सेक्शन, यू विल गेट द डिस्टॉर्शन सेक्शन। तो उस वक्त इसलिए आपको जो इक्वेशन जो इसकी ड्राइव करनी होगी, उस वक्त आपको क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, यू अंडरस्टैंड दैट, आपको इक्वेशन ड्राइव करने में डिफिकल्टी होगी। अब आपको समझ आया कि बाय दीज टू assumptions are related to each other। एक तो प्योर बेंडिंग होनी चाहिए, एंड दूसरा ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन आर रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन की जो assumption मैंने लिया था, that will remain plane after bending, that is only possible if we will consider that the beam is under pure bending, you understand। अगर मैं सिर्फ एक assumption लेता हूं that the transverse section that remain plane after bending, that cannot be possible, because that is only possible when I say that you are this वो जो आपका बेंडिंग है, बेंडिंग मूवमेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि बाय दीज टू अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये जो मैंने कंसीडर किया, बीम इज नॉट अंडर प्योर बेंडिंग, उसका मैंने आपको इफेक्ट बता दिया, व्हाई इट इज सो। अगर मैं प्रैक्टिकली जो आपका है वो तो यही होता है कि बीम आपकी अंडर प्योर बेंडिंग नहीं है, लेकिन हम अजम्पशन लेते हैं कि बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। अगर आपका नहीं होगा तो आपको जो प्लेन का कर्व होगा, वो आपको जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगी, वो आपको क्या है, वो स्ट्रेट नहीं मिलेगी, वो ट्रांसवर्स सेक्शन आपको कैसी मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी। और कर्व्ड ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आपको मिलेगी तो हमें आपको जो डिफॉर्मेशन है, इक्वेशन ऑफ द डिफॉर्मेशन, उसको भी फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगी, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगी, यू अंडरस्टैंड। बट दैट डजंट मीन ये जो हम बर्नौलीज थ्योरी, एल्वर्स थ्योरी ऑफ एल्वर्स बर्नौलीज थ्योरी यूज कर रहे हैं हम ये आपकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, दैट इज ओनली प्रैक्टिकली, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर दीज कंडीशंस जो मैंने assumptions ली है, नॉट लाइक दैट। This theory, this is practically, you can say, applicable for all type of the loads, all type, because ये जो आपको मैं चीजें जहां पे बड़ी करके दिखा रहा हूं, एक्चुअली इतना ये बड़ी नहीं है, जो आपकी डिफॉर्मेशन है या जो है बड़ी नहीं है। तो इसलिए ये जो थ्योरी आपकी है, वो सारी जितनी भी स्ट्रेसेस या जितने भी लोड हम लेते हैं, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती हैं, यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम जहां पे एक इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग, जबकि वो प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं है। सो इट डजंट मीन कि अगर हमें प्रैक्टिकली कोई बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस की फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर किस चीज के लिए, तो जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया है, क्या वो इक्वेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो होगा, यू अंडरस्टैंड दैट, वो होगा। yes, only that is for the derivation purposes, for the simplification we are assuming these you can say assumptions, you understand। so these two assumptions are very important जो मैंने किया। अब आ जाइए नेक्स्ट assumption के ऊपर।
तो जहां तक क्लियर है आपको, अगली आप हम अजम्पशंस देखेंगे. सो नेक्स्ट अजम्पशन इज क्या अजम्पशन थी? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यह थी क्रॉस सेक्शन of the beam is symmetrical about the plane of loading. First, let us we understand cross section of the beam. जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, that should be symmetrical about the plane of loading. तो पहले हम first we'll understand that what is the plane of the loading, right? Suppose we are having a beam. ये हमारे पास बीम है ना, this is your beam. तो ये कहता हूँ मैं, ये आपका पॉइंट ए है जहाँ पे आपका लोड है, ये पॉइंट बी है, ये लोड है, ये पॉइंट सी है जहाँ पे आपका लोड है. यू अंडरस्टैंड? ए बी और सी के ऊपर आपका क्या है? लोड है. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका हो गया वर्टिकल पोजीशन, एलिवेशन से हम देख रहे हैं. तो ये 3 लोड हैं एट ए बी और सी, बीम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं जस्ट लाइक दिस, राइट? ये आपका क्रॉस सेक्शन है. तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जहां पे अगर हम फ्रंट में इसको देखते हैं बीम के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर लोड है, ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, बट ये आपका लोड है. यू अंडरस्टैंड? बट अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो क्रॉस सेक्शन में देखिए, ये जो टॉप होगा, ये टॉप पॉइंट, ये जो टॉप पॉइंट है, दिस इज द टॉप सरफेस. यू कैन से दिस इज द टॉप सरफेस, राइट? सो एक्चुअली द पॉइंट, ये पॉइंट बी था, ये जो पॉइंट बी था, ये कहां पे एक्ट कर रहा है? जहां पे अगर टॉप से देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा. पॉइंट सी जहां पे एक्ट करेगा ये लोड, और पॉइंट ए जो है वो जहां पे एक्ट करेगा. तो प्रैक्टिकली जो आपका लोड होगा वो इस तरीके से, अगर हम ऊपर से देखें तो जहां पे ये एक्ट करेगा. यू अंडरस्टैंड दिस? जहां से ये एक्ट करेगा. सो अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन इसका, ये आपका हो गया बाई एक्सिस. अगर जहां से मैं इसको लूं तो ये कौन सा एक्सिस है? दिस इज आपका ये बाई और बाई डैश, ये आपका क्या हो गया? बाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड द बाई एक्सिस. अगर मैं ये बाई एक्सिस से इसको कट करता हूं, इफ आई कट द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम दिस बाई एक्सिस, यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं इसको बाई एक्सिस से कट करूंगा, तो मुझे बताइए, एक चीज बताइए मुझे, तो क्या होगा? ये जो आपका एक्सिस है, जहां पे जे एक्सिस और बाई एक्सिस पॉइंट के ऊपर मिला, ये जो आपका एक्सिस है, ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है ना. ये जो आपका एक्सिस है, दिस इज द सिमेट्रिकल. अगर जहां से मैं कट करता हूं तो अकॉर्डिंग टू बाई एक्सिस, तो वन पोर्शन इज लाइक दिस एंड वन पोर्शन इज लाइक दैट. और जिसके ऊपर आपने देखा, ये जो एक्सिस है, इसके ऊपर क्या है? लोड आपका एक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है. और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर, नॉट पॉइंट बट जिस लाइन के ऊपर आपका लोड एक्ट कर रहा है, उसी लाइन के ऊपर आपका क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट एक्ट करेगा. यू अंडरस्टैंड?
तो बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, इस लाइन के ऊपर आप एक्ट करेगा एट दीज पॉइंट्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है, दैट लाइन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ लोडिंग, यू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ द लोडिंग। प्लेन ऑफ लोडिंग आपको समझ आ गया। प्लेन ऑफ लोडिंग मीन्स the point, the line at which the load is acting and the bending moment will act। जिस लाइन के ऊपर लोड आपका एक्ट करेगा, और यू कैन से जिस लाइन के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट होगा, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ लोडिंग। समझ आ गया? व्हाट इज द प्लेन ऑफ लोडिंग? प्लेन ऑफ, क्योंकि जैसे नॉर्मली जो हम बीम बनाते हैं, नॉर्मली हम बीम का क्या है, ये फ्रंट व्यू बनाते हैं तो हम पॉइंट शो करते हैं जहां पे जहां पे जहां पे, बट प्रैक्टिकली जो बीम है आपकी वो क्या है, उसका टॉप सरफेस भी तो होगा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे जहां पे नहीं होगा, ये होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस सरफेस, जिस लाइन के ऊपर जो एक्ट करेगा, उसी लाइन के ऊपर क्या होगा, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट होगा। और जो वो लाइन होगी जिस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट आपका एक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ लोडिंग, यू अंडरस्टैंड। अब ये था, वो कहता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। तो अगर मैं इसको बाई सेक्शन से काटता हूं, दिस इज द बाई सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बाई सेक्शन। अगर मैं इसको बाई सेक्शन से काटता हूं, इस तरीके से बाई सेक्शन से इसको काटता हूं, तो आप देखिए कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन होगा इसका बीम का, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ द लोडिंग। जो क्रॉस सेक्शन होगा इसका वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। जैसे आप देखते हैं ये आपका स्क्वायर है, सपोज दिस इज योर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज क्या है, ये दिस क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या है, दिस इज द प्लेन, सिमेट्रिकल है, यू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये एच एच, दिस इज सिमेट्रिकल, जितना इधर है जितना इधर है, तो दिस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ द लोडिंग, राइट। फिर मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट, दिस इज अ सर्कल। सो ऑल दीज आर, ऐसे कर लो या ऐसे नहीं, इधर ऐसे कर लो, ऑल दीज आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ द लोडिंग, राइट। अगर आई सेक्शन है, सपोज करो ये दिस इज योर आई सेक्शन, ये आपका आई सेक्शन है, दिस इज योर आई सेक्शन। सो दिस इज योर, तो हमारी ये अजम्पशन थी कि इसमें हम ये अजम्पशन लेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ द लोडिंग। अनसिमेट्रिकल जो बीम होगी या अनसिमेट्रिकल बीम को के ऊपर हम ये इक्वेशन को ड्राइव नहीं करेंगे। दिस इज अवर assumption, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। और प्लेन ऑफ लोडिंग आपको पता चल गया, प्लेन ऑफ लोडिंग का मतलब ये है जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा, जिस प्लेन के ऊपर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो एक्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ लोडिंग, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये जो लाइन जिसको प्लेन ऑफ लोडिंग है, ये क्या होगी, इसके सेंटर में होगी। ये क्या है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसके सेंटर में होगी, और इसके ऊपर ही आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। तो ये जो लाइन है आपकी, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ लोडिंग। और क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम दैट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। तो ये अजम्पशन भी आपका क्लियर हो गया, और उसके साथ प्लेन ऑफ लोडिंग का भी मैंने क्लियर कर दिया कि प्लेन ऑफ लोडिंग क्या है। अब लास्ट assumption क्या थी, इनिशियली द बीम इज सिमेट्रिकल एंड आफ्टर बेंडिंग, or you can say it will bend like a circular arc, you understand। तो last assumption is initially state and bends in a circular arc।
लास्ट assumption है beam is initially straight and bends in a circular arc. And bends in the circular arc. ये भी उसने लिया है. दिस इज आल्सो assumption कि बीम आपकी क्या है, स्ट्रेट होनी चाहिए और इनिशियली स्ट्रेट हो, और जब बेंडिंग हो तो सर्कुलर आर्क में इसकी बेंडिंग होनी चाहिए. देखिए ये आपका बीम है. Right, this is your beam. राइट, और अब देखिए इसकी बेंडिंग करते हैं. Suppose the beam is bent like this in the circular arc. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी जो लेयर्स होगी इसकी इस तरीके से बेंड होंगी. सपोज करो मैं कहता हूं कि ये आपकी जो लेयर थी, जो लेंथ ऑफ द लेयर थी, इसकी मैं कितनी थी, दिस इज योर लेंथ ऑफ द लेयर, दिस इज इक्वल टू 100 mm. इसको ध्यान से समझिएगा. दिस इज योर 100 mm. So length of the layer is 100 mm. So you can say when the beam is straight, all the layers are 100 mm. You understand? ये वाली, नीचे वाली, ये वाली, सेंटर वाली, ऊपर जितनी भी लेयर्स थी इसमें वो क्या थी, 100 mm के ऊपर थी. अंडरस्टैंड? सो व्हेन इट बेंड्स, जब ये बेंड हुआ तो ये एक सर्कुलर आर्क की शेप में बेंड हुआ. यू अंडरस्टैंड? तो सर्कुलर आर्क की शेप में बेंड हुआ तो मैं कहता हूं कि जो मेरा टॉप एरिया है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, और जो मेरा बॉटम एरिया है, सॉरी बॉटम मेरी जो लेयर्स थी वो हमारी वेरी दैट इंक्रीज्ड. सपोज आई से ये जो मेरा टॉप लेयर थी, ये ऊपर ये थी, ये 90 mm, मीन्स दिस वाली लेयर ये आपकी कितनी होगी, 90 mm होगी. बट क्या कितनी थी ये 100 mm थी. कितना था ये 100 mm. टॉप लेयर मेरी ये होगी, और जो एक्सट्रीम मेरी नीचे वाली लेयर थी, सपोज मैं कहता हूं ये एक्सट्रीम जो नीचे वाली लेयर है मेरी, ये नीचे वाली लेयर एक्सट्रीम, तो ये आपकी होगी सपोज आपकी 110 mm.
So you have seen here, my top layer reduces from 100 mm to 90 mm and the bottom layer that increases from 100 mm to 100 mm. तो जैसे जैसे क्या है, ये जाते जाएंगे, सपोज ये 90 mm है, तो ये आपकी हो सकता है ये 95 हो। जे वाली लेयर क्या है 95, जे वाली लेयर मैं इसको सेंटर लेयर लेता हूं, जे वाली लेयर आपकी 100 mm में ही रहेगी, राइट। और जे वाली लेयर जो है 105 हो गया एंड दिस इज 110 हो गया। यू अंडरस्टैंड। तो आपने ये चीज नोट किया होगा कि ये जो आपकी लेयर है, ये जो आपकी लेयर है, दिस लेयर विल रिमेन इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज 100 mm। ये जो आपकी लेयर थी, इसका जो लेंथ था वो कितना ही रहा 100 mm। दिस लेंथ इज 100 mm। बट जैसे जैसे हम इससे फार्दर अवे जाते गए, व्हेन आई एम जस्ट गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम हियर, तो ये था 100 था, 100 के बाद 105, 110, तो इसका जो वैल्यू था वो क्या हो गया, जो एक्सट्रीम है, अगर एक्सट्रीम हम टॉप की बात करें या एक्सट्रीम लेयर बॉटम की बात करें, तो क्या होगा कि जो हमारी लेयर्स हैं वो न्यूट्रल, ये जो एक्सिस है जहां पे, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, इसके ऊपर हमारा जो लेयर था वो क्या रहा, उसकी लेंथ कांस्टेंट रही। तो पहली बात ये है कि जिस एक्सिस के ऊपर ये जो आपकी लेयर थी, जिसके ऊपर आपकी लेंथ आपकी कांस्टेंट रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर। सो न्यूट्रल लेयर क्या है, दिस इज कॉल्ड द अनडिफॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो ये न्यूट्रल लेयर क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रल लेयर? दिस इज कॉल्ड द अनडिफॉर्म्ड longitudinal layer, undeformed longitudinal layer, right? जो अनडिफॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी, जिसकी लेंथ जो है वो बेंडिंग के बाद भी सेम रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर, और इसका है अनडिफॉर्म्ड। अब जैसे जैसे हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाते जाएंगे, इफ वी विल फ्रॉम न्यूट्रल लेयर, इस केस में जो मैंने ये जब आपकी डायग्राम ड्रॉ किया गया, इस केस में इफ आई विल गो अप, जैसे जैसे मैं इस लेयर से इसका डिस्टेंसेस जो दूसरी लेयर से बढ़ता जाएगा, तो वो क्या होता जाएगा, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। ये 100 था, जहां पे 100 था, इस लेयर का 95 हुआ और ये 90 आ गया, ऊपर वाली लेयर का 90 आ गया। और जो एक्सट्रीम, जैसे जैसे हम इस लेयर से इसका डिस्टेंस दूर जाता जाएगा, तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये 90 से 95, 100, 110 लाइक दिस, राइट, सॉरी 100, 105 and 110, यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम जो भी डिस्टेंसेस हैं जिनकी हम वैल्यू न्यूट्रल लेयर से हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम y की वैल्यू देते हैं, y क्या है, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। यू अंडरस्टैंड, न्यूट्रल लेयर से जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमारा क्या है, वो क्या है हमारा, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। सो ये क्लियर हो गया आपको। डिफॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूट्रल लेयर, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द न्यूट्रल लेयर। इसमें क्या है, डिफॉर्मेशन नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड, न्यूट्रल लेयर में डिफॉर्मेशन नहीं है। जो डिस्टेंस इनिशियली उसका 100 mm था, वही डिस्टेंस अब है। और दूसरा जो है, डिफॉर्मेशन ऑफ द अदर लेयर्स, डिफॉर्मेशन ऑफ द अदर लेयर्स that depends upon the distances from the neutral layer. You understand? जो दूसरी लेयर्स का जो डिफॉर्मेशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, the distance from the neutral layer. You understand? If the distance from the neutral layer are the extreme, you understand? जैसे ये एक्सट्रीम है, तो इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम होगी। यू अंडरस्टैंड दैट, एक्सट्रीम होगी, कम एक्सट्रीम होगी, ज्यादा एक्सट्रीम होगी, बट डिफॉर्मेशन क्या होगी इसकी, एक्सट्रीम होगी। तो जो डिस्टेंस, जो डिफॉर्मेशन है हमारी, डिफॉर्मेशन ऑफ द अदर लेयर्स,
that depends upon the distances from the neutral layer. So that is why neutral layer is very important one. You understand? ये इसलिए न्यूट्रल लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हम y की वैल्यू लेते हैं, जब भी हम डिस्टेंसेस किसी का भी मेयर करते हैं, जब तो हम न्यूट्रल लेयर से मेयर करते हैं। और न्यूट्रल लेयर का आपको ये क्लियर हो गया, व्हाट इज द न्यूट्रल लेयर? दैट इज द अनडिफॉर्म्ड लेयर। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द अनडिफॉर्म्ड लेयर ड्यूरिंग द बेंडिंग। बेंडिंग के केस में जो अनडिफॉर्म्ड लेयर होगी, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल लेयर। और जो डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, एक्सट्रीम जितने जितने डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, तो हमारी क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन है वो कम और ज्यादा होती जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आज जितने भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसके, बिफोर गोइंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, जो कि सेकंड लेक्चर में मेरा होगा, तो आई थिंक ये जितने भी इसके कंसेप्ट थे इसमें बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, जितनी भी अजम्पशंस थी इतने इसमें, और हर अजम्पशन को मैंने ईच एंड एवरी अजम्पशन आई हैव एक्सप्लेन्ड, और इसका मैंने आपको बताया कि व्हाई दिस अजम्पशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेरिवेशन, व्हाई दिस अजम्पशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड? तो ये अजम्पशंस किस लिए इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन वी हैव डिस्कस, सो वी हैव टेकन द अजम्पशंस। प्योर बेंडिंग वाला अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Transverse section that will remain plane after bending, that is important. So you can say every assumption is very important here to drive the equation. तो I think मैं ये समझ सकता हूँ कि जहाँ तक जो मैंने आपको करवाया है, अगर आप उसको ध्यान से दोबारा इसको लेक्चर को देखेंगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर आपके लिए जो इक्वेशन ड्राइव करना है दैट इज वेरी इजी। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था कि बेंडिंग स्ट्रेस हमें कैसे मिलती है, हाउ वी विल गेट द बेंडिंग स्ट्रेस, हाउ वी विल calculate the bending stress, that we will go for the derivation. But before calculating the bending stress, we must know that some important concept, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे आपको प्योर बेंडिंग के बारे में बताया कि अगर प्योर बेंडिंग हम अज्यूम नहीं करें तो हमें क्या परेशानी होगी, व्हाट द डिफिकल्टी वी आर गेटिंग। We are getting the difficulty that we cannot, you can say, drive the equation of the stress easily. Reason is क्योंकि जो आपका सेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा, कर्व्ड फॉर्म में होगा, और जो डिफॉर्मेशन होगी वो आपको क्या होगी, वो आपको कर्व्ड फॉर्म में मिलेगी, जिसके लिए हमें इक्वेशन को ड्राइव करना इस बिट डिफिकल्ट, यू कैन से। तो इसलिए ये सारी अजम्पशंस जितनी भी थी, जितने भी इसमें कंसेप्ट थे जो फर्स्ट लेक्चर में थे, तो वो सारे कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। सो थैंक यू वेरी मच।